Hello friends, class 10 English chapter 3 Midnight Visitors. This is a story about the secret agent Osable and Max. तो Osable और Max के वो both are secret agent है और उसके बारे में ये story है. It is a most interesting story. Now first इसके meaning देख लेते हैं. Gloomy और dark और poorly scarcely only just as ascent a distinct way of pronouncing a language, passably just well enough, espionage, spine, visualize, sloppy, carelessly dressed, prosaic, ordinary, chuckled, laughed weakly. This chapter is Robert J. Arthur was a writer of speculative fiction known for his work with the Mystery Traveler radio series and for writing The Three Investigators, a series of young adult novels. Arthur was honored twice by Mystery Writer of America with an Agar Awards of the Best Radio Drama के लिए उनको award भी मिले हैं. He also wrote a script of television such as The Twilight Zone and Alfred Hitchcock. In this story, Osable, a secret agent, is expecting to get a very important report. Osable के पास एक important report जाती है. Another secret agent, Max, threatened him with a pistol. और another जो agent है, हाँ सीक्रेट एजेंट वो मैक्स है, वो इस रिपोर्ट को ऑसिबल के पास से छीनने का प्रयत्न करता है उसको पिस्तौल दिखाकर. नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर. द स्टोरी इज अबाउट अ witty secret agent named Osable. He was with writers named Fowler throughout the evening as Fowler was interested in the spending the time with the secret agent. Fowler राइटर है जो ऑसिबल के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है और उसकी सारी जो सीक्रेट एजेंट्स के बारे में सारी सब कुछ जानकारी हासिल करना चाहता है. ऑसिबल रियलाइज दैट ही इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही हैड इमेजिन्ड एंड दैट ही वाज बोर्ड. यानी फॉलोअर को लगता है इसके साथ मजा आएगा बट ही रियलाइज्ड ऑलरेडी ऑल अपोजिट. यानी वो जो इमेजिन करता है उससे अपोजिट होता है, वो ऑसिबल के साथ बोरिंग हो जाता है. ऑसिबल टोल्ड फॉलोअर दैट ही वुड बी सैड ही डिडंट लुक लाइक अ स्पाई. ऑसिबल फॉलोअर को बताता है अगर उसके चेहरे पे अगर मुस्कान नहीं होगी, सैड होगा, तो वो जस्ट लुक लाइक अ स्पाई नहीं लगेगा. Fowler was a writer and he had expected to see a strange figure in the night. So he also expected to hear the sound of pistol or about drugs in the wine, but it was never so in his case. तो ये सारी चीज उसको लगता है कि ऑसिबल के साथ में रहकर ये सारी चीज जहाँ ड्रग्स, वाइन, लड़की, ये सब कुछ उसको देखने को मिलेगा. हाँ, गोलियों की आवाज भी सुनने को मिलेगी, बट ये नहीं होता है. Osable told him that he had no beautiful girl around him. He might feel bored in his company. Osable ने बताया कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे आजू बाजू लड़कियां घूमती होगी और तुम मेरे साथ एंजॉय करोगे, बट ऐसा नहीं है. तो वो उसके साथ बिल्कुल बोर हो जाता है, एंजॉय नहीं कर पाता है. क्यों? उस Osable ने बताया कि तुम मेरी कंपनी में रहकर यू फील boring. So Osable then told Fowler that he had been thinking wrong and then soon he would be looking at a report that would change the country's future. Osable Fowler को ये सारी चीजें बताता है कि he had been thinking wrong, that soon he would looking at the reports that would change the countries. जो उसके हाथ जो रिपोर्ट लगी है, अगर ये किसी के और के हाथ लग जाए तो पूरे हमारी कंट्री के सारे जो सीक्रेट्स है वो उसके सामने आ जाएंगे. इसीलिए इस जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को संभालना जरूरी है. सो व्हेन
They entered the room and gun with a girl named Max was standing in the room. जब फॉलर और ऑसिबल दोनों एक होटल के अंदर एक रूम में जब एंटर होते हैं, तभी रूम के अंदर ऑलरेडी से पहले से ही एक अदर सीक्रेट एजेंट मैक्स वहां पे ही रूम के अंदर प्रेजेंट है एंड द स्टैंडिंग द रूम इन फ्रंट ऑफ ऑसिबल के सामने जब भी वो रूम के अंदर एंटर होता है तो सामने मैक्सवेल पिस्तौल लेकर खड़ा है. Fowler show a man with a small automatic pistol and across the room. It was a Max. सामने ही एक आदमी पिस्तौल लेके खड़ा है जो मैक्स है. Another secret agent. Seeing him, Ossible said that he was shocked to see him there. उसको देखकर Ossible दंग रह जाता है. He thought that he was in Berlin. वो सोचता था कि वो मैक्स बर्लिन में है. He asked them to be comfortable until the report about the missiles arrived in 30 minutes as he was there to steal the reports. वो उसकी जो रिपोर्ट्स जो वहाँ पे उनको ऑसिबल के पास जो रिपोर्ट थी मिसाइल्स जो आने वाले थे तो उसके बारे में उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी तो उस रिपोर्ट को स्टील करने के लिए मैक्स यहाँ पर आया था. दिस वॉज द फर्स्ट एडवेंचर ऑफ द मैनी दैट Fowler had expected when he had thought of meeting a secret agents. तो ये इसका फर्स्ट एडवेंचरस था. ये फॉलर जो राइटर है उसका ये फर्स्ट एडवेंचरस ऐसे दो सीक्रेट एजेंट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सडनली ऐसी इवेंट बनती है कि सामने वाला जब भी जो होटल में एंटर होते हैं सामने ही अनदर एजेंट पिस्तौल लेकर खड़ा है. while they were talking, Ossible started with a story about how a guy had entered from the balcony last month below his room. तो वो Ossible एक स्टोरी बनाता है अनदर गाय के बारे में और उस स्टोरी को लेकर वो मैक्स को उसकी स्टोरी के अंदर फंसाने का प्रयत्न करता है. While this talk was going on, a sudden knock was heard at the door. Ossible said that it must be the police as he wanted them to check on him after some time because he wanted to make the report that were coming in extra secure. यानी Ossible मैक्स को ये सारी चीज बताता है कि मैंने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी थी और वो पुलिस अभी यहाँ पे चेक करने के लिए आती ही होगी कि जो हमारे पास जो सीक्रेट एजेंट सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स है वो सिक्योर है कि नहीं. मैक्स पॉइंटिंग हिम अ गन टुवर्ड्स देम एंड मैक्स वाज थिन एंड नॉट टॉल. तो मैक्स का यहाँ पे किस तरह उसका मैक्स कैसा है एकदम थीन और नॉट एट ऑल इतना टॉल नहीं है. ही लुक्ड लाइक अ फॉक्स. वो फॉक्स जैसे चतुर है. Max told Ossible that he came there for something. It was to take the report about some missiles from him. Ossible sat into an armchair. He told him that he would complain to the management and it would be the someone had entered his room. Ossible मैक्स को बताता है कि तुम्हारी सारी बातें वो मैनेजमेंट को सारी तुम्हारी बारे में कंप्लेन करेगा. मैक्सवेल को ये बता रहा है कि तुम्हारी कंप्लेन मैं मैनेजमेंट को करूंगा. और एंड उस टाइम पे ही जब एंटर वहां पे डोर के ऊपर नॉक होता है. एंटर हिज रूम थ्रू एन ऑर्डिनरी विंडो इन द बालकनी एंड द बालकनी शुड बी क्लोज एट वंस. यहाँ पे जो ऑसिबल मैक्स के साथ एक स्टोरी बनाता है. एक्चुअली रूम के पीछे जो बालकनी होती ही नहीं है बट वो बालकनी का जिक्र स्टोरी के अंदर करता है. एंड मैक्स रिएक्ट द सेइंग दैट द ऑसिबल टोल्ड हिम दैट अ बालकनी वाज ऑफ द नेक्स्ट रूम. बात स्टोरी के अंदर ऑसिबल
मैक्स को बताता है कि इस रूम के पीछे एक बालकनी पड़ती है जो बाजू के ऑलरेडी उसके जो बाजू का जो कमरा है उसकी बालकनी इधर पड़ती है। तो ये स्टोरी उसको मैक्स को बताता है। हियरिंग दिस मैक्स गॉट नर्वस। Osable asked Max what he would do, and if the Osable did not answer the door, the police would enter anyway. अगर वो सारी ये बातें नहीं बताएगा तो मैक्स उस टाइम पे ये नर्वस हो जाता है। ऑसेबल मैक्स को पूछता है व्हाट ही वुड डू, उसको क्या चाहिए। इफ द ऑसेबल डिड नॉट आंसर द डोर एंड द पुलिस वुड एंटर एनीवेयर, अगर वो आंसर नहीं देगा तो पुलिस अंदर एंटर हो जाएगी। द डोर वॉज अनलॉक, और डोर वहां पे अनलॉक था। द पुलिस माइट शूट ऑल्सो, द पेपर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, और कभी भी पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है। ऑसेबल ने मैक्स को बताया। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, तो मैक्स का चेहरा एकदम काला सा हो गया और गुस्सा हो गया। He opened the window and put his leg out into the night. He asked Osable to send the police back and he would go and wait on the balcony. मैक्स ऑसेबल को बताता है कि जब पुलिस यहाँ से चली जाए तब मैं वापस बालकनी से आ जाऊंगा, तब तक तुम मेरी वेट करना। He also warned that he would shoot and take him a chance. और ऐसा भी बोलता है कि अगर उसको शूट करना पड़ा तो वो भी चांस ले सकता है। But there was and the Max jumped from the windows. But there was no any balconies. वहां पे कोई बालकनी नहीं होती है। The door opened and waiter comes in to say that he has brought the wine that Mr. Osable had ordered. डोर ओपन होता है, वेटर अंदर रूम के अंदर एंटर होता है और वो एक प्लेट के अंदर वाइन और सब कुछ ऑसेबल ने जो ऑर्डर करा था उसके हिसाब से वो लेके आ जाता है। He keeps the bottle, tray and glass on the table and the leaves. टेबल के ऊपर और ग्लास और ट्रे सब कुछ रख देता है। Then Fowler is surprised and asks him about the police, to which Osable replied that there was no police. फॉलर ये सारी बात जानकर उसको सरप्राइज हो जाता है एंड आस्क अबाउट द पुलिस, और पुलिस के बारे में ऑसेबल को पूछता है। एंड देन ऑसेबल रिप्लाई दैट देयर वाज नो पुलिस, वहां पे कोई पुलिस नहीं है, जस्ट उसने ये सारी बातें मैक्स को भड़काने के लिए ही बताई थी। देन फॉलर आस्क्ड व्हाट अबाउट द पर्सन हु वाज वेटिंग इन द बालकनी आउटसाइड द विंडो, to which Osable replied that a person would not return and that there was no balcony there. जब फॉलर उस पर्सन के बारे में ऑसेबल को पूछता है जो बालकनी में जो वेट कर रहा है आउटसाइड द बालकनी के अंदर, तभी ऑसेबल रिप्लाई करता है कि वहां पे कोई बालकनी ही नहीं है। दिस शोज दैट द क्विक विट ऑफ ऑसेबल एज ही took advantage of the situation and made the Max nervous, due to which he jumped out the window without thinking and looking down. तो इसे मैक्स अपनी ऑसेबल इतनी सडनली एक स्टोरी बनाकर और इस तरह वो ऐसे